हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड यू आर एंजॉइंग एट योर होम. So students, right now I am here to give you most important lecture on this chapter number 1, number system. Okay, and today we are going to cover the exercise. So first of all, let me introduce myself. This is Virendra, your computer science teacher, and today we'll surely have a lots of fun, lots of entertainment during this lecture. So students, without wasting any other time, let's come to the exercise part. So in your exercise, many kinds of questions are there. Like which kinds of question you have? Likewise, you are having fill in the blanks, right? Fill in the blanks. Okay, so I think you will have some question, 5 or 6 question in this, right? And then after you will have some MCQ like your multiple choice question, right? And after that you will have some true false question, true false. Okay, some question based on true false. And not the least, the some important things related to this, and I think the most of the time is going to have by having fourth type of question. What is fourth type of question is? Application based questions, right? So some you will having some kind of application based question also, and apart from this you will also having some question answer of following questions, right? So fill in the blanks, MCQ, true false, but application based question, answer the following questions, right? And you also know that this is the chapter number system. In this chapter you are also having some question related to your numerical part, right? Some calculation part is also there. Okay, so you will have some questions related in activity sections. Okay, in your book there is one activity section is there. Many kinds of questions are there, you have to solve in your pair copy, right? So these kinds of questions we are going to have in this video, right? So students, now we are moving to the our presentation so that you can have the answers. Okay, please come with me. Okay students, so now we are having the chapter number 1, number system, and as you know, today we are going to cover exercise of this chapter. Students, before starting the exercise, I just want to have a warm welcome on my YouTube channel. Students, if you like, then definitely give your comments to me so that I can enhance, I can upgrade my video, right? So I'm not taking a lots of time. Let's move to our presentation and we'll come to the exercise part, right? So coming to the next slide. So today we are going to cover exercise and we'll provide the solution for that, right? So this is the first question, that is fill in the blanks. Okay, students, please be ready that you have to give the answers in the YouTube comment. You can also have the option to give the answer on the WhatsApp also, right? So please be ready. Now students, question number 1.
द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज, मतलब क्या हुआ, आपको बताना है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस क्या होता है, उसका रेडिक्स क्या होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, I am receiving lots of answer immediately. Yes, I just want to have more and more answer, right? So let's check the answer. So students, now the answer is 2. Okay, now let's come to the next question. The base of dash number system is 10. मतलब क्या हुआ, ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जिसका बेस 10 होता है. ओके, आप सभी को पता है, बचपन से लेकर अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, वो नंबर सिस्टम है. चलिए आंसर दीजिए आप YouTube कमेंट के जरिए. और ये रहा आंसर, डेसिमल. डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसका बेस 10 होता है. ओके, चलिए इसी के साथ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश डिजिट. मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें कितने डिजिट आते हैं. ठीक है, यही आपको बताना है. आप अपने आंसर्स देते रहिए, मैं आपको YouTube कमेंट्स के जरिए रिप्लाई करता रहूंगा आपको मैं. चलिए देखते हैं आंसर क्या है. ये रहा आपका आंसर. आंसर है आपका 8. हमेशा ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 नंबर्स को हम शामिल करते हैं. ओके, सो विद दिस लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन इज द डैश नंबर सिस्टम इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर सिस्टम. मतलब क्या हुआ, जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कौन सी नंबर सिस्टम को समझता है. कंप्यूटर सिस्टम कौन से नंबर सिस्टम को समझता है. ओके, मतलब क्या हुआ कि मैं अगर उनको डेसिमल नंबर सिस्टम दूं तो क्या उनको डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आएगा. चलिए आप अब अपने आंसर YouTube कमेंट के जरिए देते रहिए. और इसी के साथ हम लेते हैं 4th क्वेश्चन का आंसर. आंसर है बाइनरी नंबर सिस्टम. यस, अब हमेशा याद रखिए, कंप्यूटर को केवल और केवल अगर उससे हम कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो केवल उसे बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आता है और कोई नहीं. बाकी के लिए केवल लॉजिक होते हैं. कंप्यूटर को जो लैंग्वेज आती है बाइनरी लैंग्वेज आती है. कंप्यूटर को जो नंबर सिस्टम समझ में आता है वो है केवल बाइनरी नंबर सिस्टम. ओके, चलिए इसी के साथ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन 5 देखते हैं. द डैश नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट. अब 16 डिजिट में क्या क्या चीजें हैं, फ्रॉम 0 to 9 नंबर्स एंड लेटर्स A to F. इतने सारे हमारे पास होते हैं. ठीक है, तो अब आपको बताना है वो कौन सा नंबर सिस्टम जिसमें 16 डिजिट होते हैं. आंसर सबको पता ही है, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम. तो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर हेक्सा ये जो नंबर है इसका मतलब होता है, वैसे देखा जाए 6 मतलब होता है. ठीक है, हेक्सा का मतलब ही होता है 6. और जो डेसिमल नंबर उसका मतलब होता है 10. तो 6 + 10 हो गया हमारा 16. इसीलिए हेक्सा डेसिमल का मतलब होता है कि आप यहाँ पर 16 नंबर्स को शामिल कर रहे हैं आप. ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये आपका आंसर है हेक्साडेसिमल नंबर. ठीक है, और आंसर के बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं. आई जस्ट वांट टू रिमाइंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन. देयर इज वन मोर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन बाइनरी सब्ट्रैक्शन 1 - 1 इक्वल टू व्हाट. आपको बताना है कि बाइनरी जब सब्ट्रैक्शन करते हैं हम 1 - 1 इक्वल टू क्या होता है. So students, the answer of this question is 0. ओके, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा. आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 0 होगा. 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 0 आएगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू कम न्यू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू हैव. So students, now it's time to come to have true false. Yes, the question is state true or false, right? Okay, so let's have question number 1.
यू कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स। क्या हम बाइनरी नंबर्स पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कैन नॉट कह रहा है, कैन नॉट परफॉर्म। क्या हम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकते? आपका जो भी आंसर है आप अपने YouTube कमेंट के जरिए जरूर दें। ओके, आई एम स्टिल हियर। सो विद दिस लेट्स टेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर इज फॉल्स। यस, इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। ओके, आप बाइनरी नंबर पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं आप। ओके, चलिए। द डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट, दैट इज 0 to 9। सही है गलत है? यस आंसर, यस, बिल्कुल सही बताया है आपने। आंसर इसका होगा ट्रू। यस, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द मेथड टू परफॉर्म डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर इज नॉट सेम एज द डेसिमल नंबर। मतलब क्या हुआ कि बाइनरी नंबर्स का जब हम डिवीजन करते हैं हम, तो क्या वह डिवीजन करने का तरीका डेसिमल नंबर के डिवाइड करने के तरीके के एक जैसा है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। द मेथड ऑफ डिवीजन ऑन द बाइनरी नंबर इज सेम एज द डेसिमल नंबर। ठीक है, आप जब डेसिमल का डिवीजन करते हैं आप, तो उसमें भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्वोशिएंट लिखते हैं, ठीक है, डिविडेंड लिखते हैं, और इसी के साथ जब आप बाइनरी नंबर्स के लिए करते हैं सेम प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये सेम है या नहीं सेम है, ये आपको आंसर बताना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या आंसर है। आंसर होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब हम डेसिमल के रूल्स हम इस्तेमाल करते हैं तो डेसिमल्स के रूल्स कुछ अलग होते हैं और बाइनरी के रूल्स अलग होते हैं। ओके, तो इस चीज का विशेष आप ख्याल रखिएगा, दोनों एक जैसा प्रोसेस नहीं करते हैं, ये सेम नहीं होता है ये। ठीक है, नॉट सेम। ठीक है, सेम नहीं होता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0। क्या जब हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 0 आएगा? यस, बिल्कुल 0 आएगा। यस, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द नंबर्स यूज्ड इन ऑक्टल नंबर आर 1 to 7। द नंबर्स यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम आर 1 to 7। जब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं हम, क्या वो नंबर 1 से 7 से स्टार्ट होते हैं और 7 पे एंड होता है? यस और नो? ठीक है, आंसर होगा नो, यानी कि फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आंसर। अब इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन हमारे पास है। ओहो, यस स्टूडेंट्स, ये रहा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही एंटरटेनिंग क्वेश्चन होते हैं और आप इजीली इसको कर सकते हैं आप। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। डैश इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। किसने जीरो का कॉन्सेप्ट किसने इस्तेमाल किया? ओके, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन एडल लवलेस, नंबर 2 आर्यभट्ट, नंबर 3 चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए लेट्स टेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप अपने आंसर को YouTube कमेंट से दीजिए, मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं, अपने आंसर को मैच कर लीजिए आप। ओके, चलिए देखिए, आंसर होगा बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था। आर्यभट्ट इंडिया का ही है। ओके, वो भारत का रहने वाला था। ओके, चलिए इसी के साथ अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सी रेफर्स टू। सी का मतलब क्या है? जैसे आप 0 to 9 का नंबर लेते हैं, इसके बाद 10 आता है, 10 के लिए A होता है, B के लिए 11 होता है, C के लिए क्या होगा? C के लिए आप देख सकते हैं आप 13, 11, 12। आपका मुझे लगता है C सही है इसमें, यानी कि 12 सही होगा इसमें। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। यस स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा 12। ओके स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, और आप प्लीज आप अपने कमेंट्स को और अपने क्वेश्चंस को मेरे तक जरूर पहुंचाएं ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली डैश कोड, कौन सा कोड उसे समझ में आता है? इंग्लिश कोड, फ्रेंच कोड, बाइनरी कोड। आप सभी क्या एक ही आंसर होगा, सी ऑप्शन, यस बाइनरी। कंप्यूटर को केवल और केवल बाइनरी कोड समझ में आता है। ओके, चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट की। अब इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू वॉट? अगर 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा? ठीक है, चलिए इसका आंसर आना चाहिए 1। ये रहा, बी हमारा सही है ये। इसी के साथ ये आपके जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो हमारे फिनिश होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अब आपको अपनी जो कंप्यूटर की बुक है उसमें ही सॉल्व करना है पेंसिल का यूज करके आप। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ओह स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट। एक और क्वेश्चन बाकी है हमारा, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, डिवाइड द नंबर बाय डैश। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस नंबर से डिवाइड करेंगे आप? 2 से, 8 से, 10 से, किससे डिवाइड करेंगे आप? ओके, आंसर आप सभी को पता है। ठीक है, अपने आंसर YouTube कमेंट से दीजिए। आंसर होगा 2। ओके, टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम यू मस्ट डिवाइड विद 2। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, overall 5 questions we have studied in MCQ. Now it's time to move forward. Now it's a question number D, and question number D is the answer the following question. There is some questions is written there and you need to give the answer in sentences. So right, so question number 1 is what is a number system? आप सभी लोग जानते हैं, आपका ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है। ठीक है, आपको कई बार बताया भी है, पिछले वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इस वीडियो में हम आंसर को डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम। ये रहा आंसर। आंसर देखिए, इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज सच एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। मतलब क्या हुआ कि कुछ वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज की हेल्प से कुछ क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज हमने ले ली, जैसे मान लीजिए मैंने लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इस नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट बताओगे आप? एक क्लास में जितने स्टूडेंट हैं आप उसको बताओगे ना, आप 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं। तो कुछ वैल्यूज को आपने लिया, उसी की हेल्प से किसी क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पर, नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग अ मूवी। किसी पिक्चर को, किसी मूवी को कितने व्यूअर्स देख रहे हैं आप, नंबर्स की फॉर्म में बताएंगे। तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को दर्शाने के लिए आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज के बारे में बताते हो, उन्हीं वैल्यूज की हेल्प से। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है व्हाट आर द रूल्स टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। मतलब आपको यहाँ पे रूल्स बताने हैं कि कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से, कैसे। ठीक है, चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं हम। चलिए पहला पॉइंट देखिए आप, डिवाइड द गिवन नंबर विथ द बेस 2। मतलब क्या हुआ, जो भी आपके पास डेसिमल नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है, राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्वोशिएंट अगेन बाय 2। मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर को साइड में आप लिख लेंगे आप, और उसी क्वोशिएंट को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे आप। ओके, चलिए स्टेप नंबर 3, रिपीट द स्टेप नंबर 2 टिल द क्वोशिएंट इज 0। मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पर तब तक स्टेप 2 को रिपीट करना है जब तक कि क्वोशिएंट 0 ना आ जाए। ओके, चलिए अगला देखते हैं, स्टेप नंबर 4। फिर इसके बाद क्या करेंगे, राइट द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड इन ईच स्टेप इन रिवर्स ऑर्डर।
टू फॉर्म द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ गिवन डेसिमल नंबर। अब आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ यानी रिवर्स ऑर्डर में सभी रिमाइंडर्स को आपको एक जगह लिख लेना है ताकि वो बाइनरी नंबर बन जाए, और वही जो बाइनरी नंबर आपने लिखा है वो होगा किसी डेसिमल नंबर का बाइनरी फॉर्म। ओके, सो ये है स्टूडेंट्स आपके स्टेप्स। उम्मीद करता हूं ये सारे स्टेप्स बिल्कुल क्लियर होंगे आपके, ठीक है। आप मेरी पुरानी वीडियोस को जरूर फॉलो करें। अगर आपको कोई भी डाउट है आप उन वीडियोस को फॉलो करें, देखें, समझें। नहीं समझ में आता है आप मेरे से इमीडिएटली कांटेक्ट करें आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या है, राइट द रूल्स टू मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर्स। आपको यहाँ रूल्स के बारे में बताना है, ठीक है, कि बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करने के क्या रूल्स हैं। देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं। देखिए पहला रूल देखिए, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। हमेशा 0 में अगर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। सेकेंड फॉर्मूला देखिए, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। 1 में अगर 0 की मल्टीप्लाई करें या 0 में 1 की मल्टीप्लाई करें आपको आंसर मिलेगा 0, ठीक है। लास्ट देखते हैं, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब आपको इतने से एक चीज आपको कंफर्म हो गया होगा कि जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं तो अगर हम किसी भी नंबर में, किसी भी बाइनरी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आंसर आएगा। केवल एक केस में 1 आ रहा है हमारा आंसर, वो है 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम को आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। चलिए इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट। इसमें क्या होता है, 8 डिजिट को हम लेते हैं और 0 से लेकर 7 तक, 1 से 7 नहीं, 0 से 7 लेते हैं हम, और इसका बेस क्या होगा 8। यस, याद रखिएगा इसका जो बेस होगा 8 होगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। इसी में क्या लिखा है देखिए, द प्रोसीजर टू कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल इज सेम एज बाइनरी टू डेसिमल। मतलब क्या हुआ कि ऑक्टल से डेसिमल करने का जो तरीका है और बाइनरी से जो डेसिमल करने का तरीका है ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन बट बेस इज डिफरेंट, दोनों का बेस अलग अलग रहेगा दोनों का। यानी डेसिमल में तो 10 लेते हैं हम, ठीक है, उसका 10 होगा, और ऑक्टल का 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा जो काम है पहले आप 2 से करते थे, अब आप 8 से करेंगे आप, ठीक है। देखिए मैं इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। मैं स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड विथ इंक्रीजिंग पावर ऑफ 8 starting from 0 and finally calculate the sum of all the product। मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस आपने सीखा है आपने यहाँ पर कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है, उस प्रोसेस में होता क्या है आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अगर 3 नंबर दे रखा है, 3 नंबर देने का मतलब ये हुआ 0 1 2 ये 3 अलग अलग पावर्स आपको यूज करने हैं। 8 के ऊपर आपको लिखना है 8 टू द पावर 0, फिर इसमें इनटू हम करेंगे जितने भी नंबर लिखे होंगे, फिर इसके बाद लगाएंगे प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको ओरली समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखें आप, ठीक है। लेकिन ऑक्टल से जो आपका जो नंबर सिस्टम है, उस ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन के प्रोसेस होते हैं ये 2 चीजों के सेम होते हैं। ये एक होता है ऑक्टल से डेसिमल और दूसरा होता है बाइनरी से डेसिमल। बेस का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहा आपका आंसर। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब आपको यहां बताना है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम
ये इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं 16 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या होगा इसके अंदर, नंबर्स होंगे 0 से लेकर 9 तक के, लेटर्स भी होंगे इसके अंदर A से F तक। यहाँ A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है 15। इसीलिए इसको हम बेस 16 लेते हैं और इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हेक्स, HEX, हेक्स, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में यहां पर अब आपको दो चीजों का प्रोसेस आपको सेम है यहाँ पे, यानी कि जब हम कन्वर्जन करते हैं हम तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल और बाइनरी से जो डेसिमल करते हैं, इन दोनों का प्रोसेस सेम होगा। बस अंतर क्या होगा, केवल बेस का। यहां आपको 16 बेस आपको लेना पड़ेगा और प्रोसेस वही है जो आप करते आ रहे थे आप, ठीक है। 16 के पावर लेने हैं, सारे जितने हमारे सम आएंगे, जितने हमारे प्रोडक्ट आएंगे, सबको सम कर देना है, ठीक है। तो ओरल तो नहीं हो सकता है, ओरल ना समझ में आए आपको, ठीक है, लेकिन आप मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, आपको जरूर समझ में आएगा ये। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है ये, द प्रोसीजर टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल इज सेम एज बाइनरी टू डेसिमल बट बेस इज डिफरेंट, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, बेस का विशेष ध्यान रखेंगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम अगली स्लाइड में। So students, it's time to thank you, it's time to finish off this video, right? Okay students, so I hope you have enjoyed in this video, and I hope you each and everything is very much clear to you, but I think it is not necessary that all questions will be clear. Okay, maybe some little questions, some of the small questions create some kind of doubts also. So students, if you have any kind of doubt, you can definitely get in touch with me immediately. Okay, I'm always here to solve your questions, right? And before the end of this video, I just want to a few things. A most important thing for you, that if you like this video, definitely you have to subscribe this and share this video to your friends, okay. And finally, one more thing, please press the bell icon so that you can have the notification of my latest videos. So it's time to say bye bye from this video. We'll meet in next video with new topic. So students, thank you so much.